Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. Listeners who are going to be calling us from outside Delhi will have to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार सोनू, नमस्कार अनुभा और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Startups in India are turning out to be a powerful vehicle to fulfill the dreams of common Indian youth, says Prime Minister Narendra Modi. Union government prohibits wheat exports and US markets end volatile week on a higher note. भारत में स्टार्टअप्स सामान्य भारतीय युवाओं के सपनों को पूरा करने का मजबूत माध्यम बनते जा रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध और अमेरिकी बाजारों में इस सप्ताह के अंतिम दिन तेजी हुई दर्ज। And let's start with the first news. Prime Minister Narendra Modi said that startups in India are turning out to be a powerful vehicle to fulfill the dreams of the common Indian youth. Prime Minister Modi said this yesterday while launching the Madhya Pradesh Startup Policy during the Madhya Pradesh Startup Conclave held in Indore. Mr. Modi also launched the Madhya Pradesh Startup Portal and interacted with the startup entrepreneurs via video. Addressing the gathering, the Prime Minister said the country has a proactive startup policy and adequate startup leadership. In the year 2014, there were only 300 to 400 startups in India, whereas today this number has reached 70,000. India has the third largest startup ecosystem in the world. PM Modi said the reason for our startups' success is to create a new ecosystem in the country by creating infrastructure, simplification of government processes, and changing the mindset of the people. Hackathons have become a strong foundation for startups. Our schools are functioning as a nursery of startups. Atal Tinkering Labs are in schools, and more than 700 incubation centers have also played vital roles to set up startups in the country, the Prime Minister further added. और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के पहले कॉलर सतीश दिल्ली से। सतीश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मैडम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि रजिस्ट्रार ने अगर गलती से ट्रांसफर किए हो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में शेयर, तो उसकी कंप्लेंट किसको की जा सकती है? और नंबर दूसरा कि क्रिप्टो का डाउनफॉल क्या अभी और जारी रहेगा? थैंक यू। चलिए सतीश जी, आपका पहला सवाल था गलती से। देखिए, गलती से नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि जो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में जो शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं वो कुछ समय का क्राइटेरिया है, वो उस क्राइटेरिया को पूरा करता है तभी ट्रांसफर हो जाते हैं। और अगर आप कह रहे हैं गलती से ट्रांसफर हुए तो आप उन्हीं को आवेदन करिए, उसमें कंप्लेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इन्वेस्टर एजुकेशन बना हुआ है इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। उसका नाम ही इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, तो वो आपके लिए ही बना हुआ है, तो इसलिए उसकी कोई कंप्लेंट की मुझे नहीं लग रहा कि आवश्यकता। हालांकि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, आपको ये मैं बता दूं। और उसकी अगर फिर भी कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप सेक्रेटरी लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को या ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लिख सकते हैं। परंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि आप आवेदन करेंगे तो वो आपके शेयर्स को वापस आपको हैंडओवर कर देंगे। और दूसरा, आपने क्रिप्टो का पूछा। जी हाँ, क्रिप्टो के मैं बहुत ज्यादा क्रिप्टो का फैन नहीं हूं शुरू से ही। मैं तो शुरू से ही सतर्क करता रहा हूं लोगों को, और आगे उसका भविष्य बहुत ही स्पेकुलेटिव एक एसेट क्लास है और भारत में अभी पूरी तरह से इसको मान्यता भी नहीं है।
तो मैं क्रिप्टो पे कभी भी अभी राय नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे पास कमाने के सतीश जी और बहुत अच्छे अच्छे संसाधन है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, तो हमें क्या जरूरत है इतने खतरनाक चीजों को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कहां 60,000 से घट के 30,000 से नीचे आ गया, आधे पैसे रह गए। क्यों आप ऐसी चीज का सोचते भी हैं? मैं तो ये कहता हूं आप इसके बारे में सोचिए भी मत अभी फिलहाल, जब तक भारत सरकार पूरी तरह इसको मान्यता नहीं देती। And the next caller is also from Delhi, Bharat Bhushan. Mr. Bhushan, welcome to the program. Please ask your question. जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर से नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि किसी भी शेयर का आधे घंटे का एवरेज प्राइस अगर हमें निकालना हो तो उसका मेथड क्या होगा? धन्यवाद। किसी भी शेयर का अगर आपको आधे एक घंटे का एवरेज निकालना हो, आधे घंटे का एवरेज निकालना हो, तो भारत भूषण जी, ये तो आप जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जो आप स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, आपके कंप्यूटर पे वो डाउनलोडेड होता है और उसमें निरंतर वो साथ के साथ ही एवरेज देता जाता है। आप क्योंकि आधे पौने घंटे के एवरेज से तो मुझे नहीं पता आप क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, वो तो स्पेकुलेशन में या इंट्राडे ट्रेडिंग में उसका इस्तेमाल होता होगा, करते होंगे आप, होता तो है ही है। तो मुझे लग रहा है जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ले, वो हाथ के हाथ आपको एवरेजेस बताता जाता है। वो आपको डेली एवरेज बताता है, आपको वीकली एवरेज बताता है, आपको मंथली एवरेज बताता है, आपको क्वार्टरली एवरेज बताता है, और वो डेमा भी बताता है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कहते हैं, वो भी बताता है। तो इस सॉफ्टवेयर में फीचर इनबिल्ट होता है, उसमें से आप ले सकते हैं। पर आधे घंटे के एवरेज से आप क्या करना चाहते हैं, ये आप संभल के करिएगा। अगले कॉलर है गुरुनाथ जी थाने से। नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। पुलिस आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा क्वेश्चन है जो एक्सपोर्ट के बारे में, तो ये जो 420 का जो आंकड़ा जो हमारा एक्सपोर्ट जो रिकॉर्ड है, तो एक बार आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? गुरुनाथ जी, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, आप जरा फिर से बोले। हाँ सर, ये जो हमारा जो एक्सपोर्ट है ना जी, वो 420 का मतलब $420 बिलियन का जो हुआ है, वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है जी। तो सर, ये जो सर्विस सेक्टर है जी, उसमें काउंट होता है क्या? जो सर्विस सेक्टर का जो कुछ बिजनेस होता है जी, तो ये वैसे तो देखा जाए तो $650 बिलियन का होता है, तो गवर्नमेंट ये 420 ही डिक्लेयर करती है, तो ये सर्विस सेक्टर को नहीं गिना जाता है क्या? थैंक यू जी। गुरुनाथ जी, क्योंकि आपने आंकड़ों की बात करी तो मैं आंकड़ों से ही जवाब देता हूं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने $250 बिलियन ठीक पकड़ा। सर्विस एक्सपोर्ट हमारा $250 बिलियन है, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 420 बिलियन के बीच में है। कुल मिलाके हम इस समय $650-670 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं, जो भारत के सामान का दुनिया भर में वर्चस्व बनता जा रहा है। आपने, जी हाँ बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर्विस एक्सपोर्ट अलग गिना जाता है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अलग गिना जाता है जी। And the next caller now is from Kolkata, Pranab. Mr. Pranab, welcome to the program. Please ask your question. Thank you and good evening. I want to know what is PMS fund and how to invest in this fund. Which fund? PMS. Are you asking about PMS? Yes. Okay. Portfolio management services fund. Yeah. So Pranab, the PMS or portfolio management is a service which is given by specified fund managers. So you contribute, I think the minimum amount these days for participating in a PMS is around 50 lakhs, if I'm not wrong. So when you contribute this amount, then the fund manager manages this fund. They invest in stock markets. They keep giving you statements along with, and whatever returns they generate, they pass it on to you. Either it's a growth scheme or they can give you dividend also. So portfolio management is nothing but a manager pooling in your funds together and deciding by way of expertise on where to invest. So therefore, it is considered as slightly more risky than a mutual fund, for your information. और क्या चॉइस थोड़ी इन्वेस्टर के पास भी है कि वो कहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में? कुछ एक फंड मैनेजर सोनू ऐसे होते हैं जो कि आपको पीएमएस, जैसे मान लीजिए किसी ने पीएमएस निफ्टी 50 का बनाया हुआ है, किसी ने पीएमएस मिड कैप का बनाया हुआ है, किसी ने स्मॉल कैप का बनाया हुआ है, किसी ने मिक्स बनाया हुआ है। अगर आपके पास फंड मैनेजर ये चॉइस दे रहा है तो आप चूज कर सकते हैं, पर एक बार आपने जब उसमें लगा दिया उसके बाद फिर आपके पास चॉइस नहीं होती, क्योंकि आपको लेट द एक्सपर्ट्स डू द टॉकिंग जैसे बोला जाता है, तो उसके बाद वो खुद संभालते हैं उसको। और अब चलते हैं नोएडा, जहां से एसपीएस जैन है हमारे अगले श्रोता। मिस्टर जैन, बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछें।
हाँ नमस्कार जी कोहली जी, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। कोहली साहब, पिछले सैटरडे को आपने फरवो मार लिया, बड़ा निराशा हुई। क्या हुआ? अच्छा, फ्रेंच लीव कर लिया आप। सर मुझे आपसे ज्यादा निराशा हुई, पर मैं मजबूर था किसी मजबूरी के कारण। एनीवे साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक्सपोर्ट गेहूं का रोक लगाई है सरकार ने जी, क्या ऐसी उम्मीद है कि हमारे कुछ प्रोडक्शन कम हो रहा है या हीट वेव का असर है, क्या वजह है? दूसरा सवाल यह है कि वैसे तो आप स्पेसिफिक शेयर की बात नहीं करेंगे जी, पीएसयू बैंक का क्या फ्यूचर है? चलिए जैन साहब, आपने वीट बैंक का पूछा और दिन में एक मनी मैटर्स प्रोग्राम होता है, सोनू भी उसमें उसी बात का जिक्र कर रही थी। जी नहीं, हमारी प्रोडक्शन जैन साहब बिल्कुल कम नहीं हुई है। हमको बम्पर, पिछले कई सालों से लगातार हमको बम्पर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। फूड सरप्लस कंट्री हम बन गए हैं फूड डेफिशिएंट से। आपको याद होगा पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे कि खाने को नहीं है, वो जमाना बीत गया। अब तो हम फूड सरप्लस है, हम दुनिया की फूड बास्केट बनने को तैयार है। परंतु, अब ये परंतु बहुत जरूरी है सुनना, कि इस समय जो परिस्थिति इन्फ्लेशन से संबंधित बनी हुई है, उसमें भारत सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो जाए, क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं फूड शॉर्टेज, सप्लाई डिसरप्शन की वजह से। आपने देखा कि इन्फ्लेशन बहुत हद तक सप्लाई डिसरप्शन की वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से भी है, पर सप्लाई डिसरप्शन हो जाता है जब आप एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। पता लगा घर में जो ऐसा ही है, जैसे घर में 4 रोटी बनाई, 4 लोग खाने वाले हैं और 2 पड़ोसियों को दे दी, तो घर में तो 2 लोग भूखे रह सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है। इस वजह से एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन जैन साहब, कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है फूड ग्रेन्स में। एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन इसको अभी फिलहाल बैन कर दिया गया है, कीमतों पर रोक लगाने के लिए, जिससे कीमतें अनायास ना बढ़ जाएं। और दूसरा आपने पूछा पीएसयू बैंक्स का, तो देखिए पीएसयू बैंक्स का भविष्य मुझे अच्छा नजर आता है, क्योंकि पीएसयू बैंक सारों ने अपने जो एनपीएस है बहुत कम किए हैं। उनके आप रिजल्ट देखिए, अभी एसबीआई का रिजल्ट आया एक आध दिन पहले, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उनकी जो एनआईआई होती है, जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, वो बढ़ रही है। एनपीएस का लोड घट रहा है। कुल मिला के धीरे धीरे भले ही धीरे धीरे सही उनकी, तो मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए जैन साहब आप उसमें निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप बेशक अवॉइड करना चाहें तो करिए, पर उसको आप भी एसआईपी की तरह ले। आजकल मार्केट करेक्टिव मोड में है, तो आप धीरे धीरे करके उसका एक्यूमुलेशन करें, जिससे कि आपके पास एक एवरेज बड़ी अच्छी प्राइस बन जाए और लंबी अवधि के लिए इसको जैन साहब आप रख के चले। जी, अगले कॉलर हैं खजुराहो से जितेंद्र। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे साथ बने रहिए। अभी बात हुई व्हीट एक्सपोर्ट्स की, तो उससे जुड़ी एक स्टोरी हमारे पास है, वो सुना के आपसे फिर हम आपका प्रश्न पूछेंगे। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है, ताकि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन किया जा सके और पड़ोसी देशों तथा अन्य कमजोर राष्ट्रों की जरूरतों को पूरा करने में मदद की जा सके। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार की अनुमति से अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि विभिन्न कारणों से गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए भारत पड़ोसी देशों और अन्य निर्धन देशों की खाद्य सुरक्षा जोखिम में पड़ गई है। अधिसूचना के अनुसार सरकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। जितेंद्र जी, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल पूछिए। जी मैम नमस्ते, और शरद सर को भी नमस्ते। नमस्कार। 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडिया इंडेक्स ये क्या होता है और ये एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए क्या जानकारी देता है? और दूसरा क्वेश्चन है कि रशिया यूक्रेन वार 24 फरवरी को शुरू हुआ था और 23 फरवरी को इंडिया रशिया से लेस देन 1% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता था। आज उसकी मात्रा बढ़कर 17% हो गई है, वो भी $70 पर बैरल के हिसाब से। इंडिया इस क्रूड ऑयल का उपयोग इन्फ्लेशन मैनेज करने के बजाय यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे भारत की क्या स्ट्रेटजी है? थैंक यू सर। जितेंद्र जी, आपने एमएससीआई का पूछा, हम उसको एमएससीआई कहते हैं, मॉर्गन स्टैनली जो इंडेक्स होती है। देखिए ये इंडेक्स क्या होती है, ये इंडेक्स एक वेटेज बताती है कि किस शेयर का, मॉर्गन स्टैनली की जो अपनी इंडेक्स है उसमें किस शेयर का कितना वेटेज है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये घटता बढ़ता रहता है। जैसे जैसे जब किसी शेयर का वजन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, या परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाती है, या कोई उसमें ऐसी खबर आ जाती है, तो मॉर्गन स्टैनली जो कंपनी है, जो ग्रुप है पूरा, वो उसको रिव्यू करके घटाता बढ़ाता रहता है। आपके लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर एमएससीआई में कोई शेयर की वेटेज बढ़ती है
तो ऐसा अमूमन देखा गया है कि वो यहां पर भी निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। अब उसकी कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करता, बाकी अपनी ओर वो निवेशकों का ध्यान खींचता है। आपने रशिया यूक्रेन का पूछा, जी हां, भारत ने एक बहुत न्यूट्रल स्टैंड रखा है और उसी न्यूट्रल स्टैंड के अंतर्गत भारत ने रशिया से अपना इंपोर्ट ऑयल का बढ़ाया है। हालांकि भारत को यूरोप, अमेरिका ने एक स्टेटमेंट भी दी, पर भारत ने अपना न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए कहा और भारत यहां से लेके एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए, वो जो राजनीतिक और पॉलिटिकल मैटर्स हैं उस पे, क्योंकि बहुत सारा यहां पर ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के लिए भी आता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सारा का सारा जो ऑयल आता है हम अपनी गाड़ियों में नहीं डलवा लेते, उसमें से कुछ एक हम रिफाइनिंग करके भी देते हैं। तो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, बिल्कुल बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का जरिया है। तो अगर भारत का एक्सपोर्ट आज बढ़ रहा है, 420 बिलियन डॉलर अभी आपसे पीछे किसी श्रोता ने पूछा था, और बढ़ के हो गया है, तो मुझे लग रहा है तारीफ की बात है कि भारत से होके वो रिफाइन होके जाता है और उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। बाकी पेट्रोल डीजल की कीमतें करने के लिए सरकार, मुझे लग रहा है, वचनबद्ध है। 8 अप्रैल के बाद कीमतें नहीं बढ़ी है, जैसे ही परिस्थिति सुधरेगी आपको उसमें राहत मिलती दिखेगी। तो आप थोड़े अपने काफी गुस्से में आपने पूछा, मैं आपको सलाह दूंगा, गुस्सा शांत करें, नींबू पानी पिए और बिल्कुल राहत मिलेगी। And the next caller is Devang from Bhuj. Mr. Devang, welcome to the program. Please ask your question. Thank you, ma'am. Good evening to all. Good evening. सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अभी पावर सेक्टर में जो गिरावट आया है जी, वो गिरावट कितने दिनों तक चलेगा और इसका मेन कारण क्या है गिरावट का? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अभी मार्केट नीचे गिरा हुआ है, तो फिर ये करेक्ट टाइम है निवेश करने का या फिर हमें अभी और वेट करना चाहिए? देवांग, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, खासकर जो आपका दूसरा वाला सवाल है। पावर सेक्टर में गिरावट आई है देवांग जी, वो इसलिए आई है क्योंकि एक हवा सी चल पड़ी है जो कि मार्केट को नीचे ला रही है। इंपोर्टेड हवा है, बाहर से आ रही है हवा और हमारी मार्केट को ये नीचे ले जा रही है। तो उसी हवा में पावर सेक्टर को वैसे नहीं बहना चाहिए था, क्योंकि पावर सेक्टर की तो बहुत जबरदस्त डिमांड है इस टाइम। तो उसी हवा का वो शिकार हुआ है, सेंटीमेंट जिसको हम कहते हैं खराब है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाह रहा था इस सवाल पे बोलना कि कोई पूछे तो मैं बोलूं, आप नहीं पूछते तो शायद मुझे मौका नहीं मिलता, क्योंकि रेलेवेंट होगा हर एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सलाह जो दे रहे हैं इस समय के मार्केट इस समय जो करेक्टिव मोड में है, निफ्टी 16,000 से नीचे, सेंसेक्स भी करेक्शन मोड में जा चुका है। तो इस समय मैं समझता हूं जो बार्गेन हंटर्स हैं, जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है तो आप 100 रुपए में, अब मार्केट में 10% करेक्शन आई, आप उसमें से 20 रुपए लगा दीजिए। मान लीजिए और करेक्शन आती है 5%, आप और 20 रुपए लगा दीजिए। आपको धीरे धीरे मार्केट में SIP के जरिए इस समय शेयर्स को बटोरने का टाइम है, अपने निवेश को बढ़ाने का टाइम है। पर शेयर्स अच्छे होने चाहिए, बहुत रिसर्च किए होने चाहिए, किसी जानकार की सलाह से होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में जब ये मार्केट फिर से बल्ले बल्ले होगी, उस समय आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और अगर मिलेंगे तो मैं सोनू और अनुभा की इजाजत से बोलता हूं तो हमें एक लड्डू जरूर भेजेगा। And the next caller is Ranjan from Delhi. And before we take your question, Ranjan, Mr. Kohli, we were discussing, of course, that the markets are in a corrective mode. So given the fact that the whole week the market was, in the red for the last 6 sessions, what do you see, what are the trends that are going to affect the market in the coming days? I think there are multiple factors, Anubha. I mean, you look at the bond yield, you look at the dollar index, you look at the crude oil, ever so volatile prices. You look at the interest rate, the big daddy of all the effects, yes. The inflation, and, Fed is likely to take a call on in the month of June. It has already said. Yeah. They are likely to hike. So the data point, we call them as data point. These data points do not seem to be very favorable at this point of time. So the market will remain volatile. However, having said that, you will keep seeing these interim springbacks. I mean, the market will try and come back. Like Monday, we might see market opening in positive. So these will be technical bounce backs, and the market is dying to get into a bull mode. But the problem is there are overriding factors. So I think things are going to remain volatile. And until these data points improve, it is very hard to say that market can get into a bull run clearly. And the Ukraine-Russia conflict also. Yes, and I have always been saying in this show itself that when two countries are at war, how can you expect the market to go bum or balle balle? I mean, you don't expect that to be happening. So the things have to come. Market को ना बहुत खुशनुमा माहौल पसंद है, उनको स्टेबिलिटी पसंद है, उनको खुशहाली पसंद है. तो जब भी कहीं ऐसी इसके अलावा कोई चीज होती है तो मार्केट फिर थोड़ा हिलता ही हिलता है. बट जस्ट वन थिंग कि जब कोविड था तब मार्केट्स ने बहुत रेजिलियंस दिखाई. वो इसलिए क्योंकि उस टाइम सोनू लिक्विडिटी बहुत आई. जी. और अब उसी लिक्विडिटी को जब खींचा जा रहा है तो मार्केट को दर्द हो रहा है.
जी, एंड नाउ रंजन प्लीज वेलकम टू द प्रोग्राम एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, हेलो सर, मैं शरद पुली को नमस्कार करता हूँ जी। नमस्कार जी। वो मेरा 2 क्वेश्चन है सर जी। एक तो क्वेश्चन है कि जैसे कोई भी शेयर का होता है तो बोला जाता है कि प्रोमोटर होल्डिंग, वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, कि 50% से ऊपर हो, आप समझ रहे हैं सर जी। तो किसी भी कोई कंपनी ऐसा है कि बहुत अच्छी है लेकिन उसका प्रोमोटेड 0 होता है जी, तो ये ऐसे कैसे, इसके बारे में समझना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे हम SIP करते हैं जी किसी भी शेयर में, तो वो रेट बढ़ता जाता है, जैसे 100 रुपए का लें, फिर कल 150 का हो गया, फिर 150 का लेंगे, तो ऐसे मतलब कैसे वो कंपाउंडिंग होगा, ये थोड़ा समझाएं सर। चलिए पहले प्रोमोटर्स होल्डिंग बता देते हैं रंजन जी। आपको प्रोमोटर होल्डिंग होता है कि जो कंपनी के मालिक हैं, जिन लोगों ने कंपनी बनाई थी, जिन्होंने बिजनेस चलाया था, उनकी कितनी उसमें होल्डिंग है, ये मैटर करती है। क्योंकि अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा होती है तो उस कंपनी को हेल्दी माना जाता है और निवेशकों का कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है। आप सोचिए ना, जिसने कंपनी बनाई उसके पास कुछ भी नहीं है, सारा लोगों के पास है, तो उसको थोड़ा सा अनसेफ माना जाता है। पहला ही। आपने दूसरा एक और पूछा था इन्होंने, SIP के थ्रू जो स्टॉक्स खरीद रहे हैं, SIP के थ्रू जो आप स्टॉक खरीदते हैं, जब हम बार बार बात करते हैं SIP की, आज भी हमने बात करी, उसका मतलब यह है कि आपने मान लीजिए आज 100 रुपए का शेयर था, आपने लिया, कल गिर के 80 हो गया, परसों वो 60 रुपए हो गया और आपने तीनों दिन खरीदा, तो अब आपकी एवरेज प्राइस क्या आएगी, 80 रुपए। तो उससे क्या होगा कि जब मार्केट कल को जब शेयर 120 पे जाएगा तो आपको सीधा 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो SIP का मतलब होता है धीरे धीरे करके, जब जब प्राइस करेक्ट हो उसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे करते जाएं, जिससे कि जब मार्केट बढ़ेगी तो आपकी एक ऐसी प्राइस होगी जिसपे आपका मुनाफा बहुत अच्छा दिखाई देगा। जी। शंकर है हमारे अगले कॉलर भोपाल से। शंकर जी स्वागत है, सवाल पूछे। नमस्कार। ये सर मेरे को सवाल पूछना है, ये बिजली का संकट आया हुआ था और अभी भी चल ही रहा है। बिजली NCR में तो घंटा आती है, 3 घंटा जाती है, मेरे मित्र लोग बड़े परेशान है जी। तो ये मूल वजह क्या है? या कोयले का कोल इंडिया का एकाधिकार है जो खनन और बिक्री के ऊपर उनके पास अकेले, उनके अलावा कोई नहीं करता, या फिर ये वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारे बड़े बड़े कोल इंपोर्टर्स के? क्योंकि 2014 में हमारे मंत्री जी ने कहा था, पीयूष गोयल ने, कि साहब हम 3 साल में कर देंगे, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कोयले में नहीं हो पाए, तो आपकी वजह से आप क्या सोचना है, क्यों ये, या फिस्कल जो हमारी पॉलिसीज हैं इसके पेमेंट को लेकर, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं? क्या मूल वजह क्या है जिसकी वजह से हम अभी भी बिजली संकट और कोयले की परेशानी से गुजर रहे हैं? थैंक यू। देखिए शंकर, जो कोल का संकट है वो कोल की अनलिमिटेड प्रोडक्शन तो है नहीं, पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए। कोल इंडिया वाकई आपने ठीक कहा खनन करता है और बहुत सारी हमारी कोल की जरूरत इंपोर्ट भी की जाती है। तो पीछे जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए शंकर, जो कि आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि रशिया से भी हमारे कोल का आयात होता है, और जब से वहां लड़ाई छिड़ी है और खासकर जब से स्विफ्ट को रशिया को स्विफ्ट से बाहर किया गया, पेमेंट रिलेटेड दिक्कतें आई, कुछ गर्मी के कारण कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आती हैं। कोल इंडिया अगर खनन कर भी रहा है तो कई दफे वो समय पर पावर प्लांट पर पहुंच नहीं पाता, ये दिक्कतें भी आती हैं। इसकी वजह मुझे लग रहा है वो एक टेम्परेरी फेज था, ऐसा कोई पावर संकट अभी यहां पर है नहीं। जो शॉर्टेज है वो तो है ही है, पर ऐसा कोई विशेष पावर संकट अभी क्रिएट नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है वो छोटी सी बात होती है तो वो चर्चा में आते आते बहुत बड़ी हो जाती है। आप निश्चिंत रहे, ऐसा कोई संकट नहीं है। होगा तो आपको जरूर वो सामने दिखाई देने लग जाएगा अपने आप। पहले तो घर में पंखे और लाइट में दिखने लग जाएगा, और बाकी आपको मीडिया के माध्यम से पता लग ही जाता है। जी जी। एंड द नेक्स्ट कॉलर नाउ इज प्रेम सागर फ्रॉम अमृतसर। प्रेम सागर, वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछे। अमृतसर से प्रेम सागर बोल रहा हूँ। हाँ जी, सवाल। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आकाशवाणी का, जो ऐसे प्रोग्राम लाता है। मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, रेडियो सुनता हूँ, बस यही मेरा शौक है जी। तो काफी जानकारी दे रहे हैं आप। ये प्रोग्राम मैं रोज सुनता हूँ। ये एक बात में तो किसी श्रोता ने पूछी खाद्यान्न के बारे में, तो मैं भी ये कहूँगा कि जो हमारा सरकार का डिसीजन है एक्सपोर्ट गेहूं ना करने का, अच्छा ही किया है। क्या आप क्या कहेंगे? मैंने तो प्रेम सागर जी, हम भी बहुत सिंपल है। पहली बात, आप सिंपल है तो हम आपसे भी ज्यादा सिंपल हैं। और सरकार ने बिल्कुल, मैंने तो ऑलरेडी कमेंट कर दिया कि सरकार ने अभी इसको, क्योंकि भारत को, श्रीलंका को शायद जरूरत पड़ सकती है, और भारत में भी शॉर्टेज अभी हम नहीं देखना चाहते। एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। एंड ऑल्सो टू कंट्रोल द प्राइस हाइक विच माइट
because of the shock. बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सोनू और अनुभा की आज्ञा हो तो मैं इनको पंजाबी में धन्यवाद कर दूं। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, सानू बड़ा अच्छा लगा तुहाडे नाल गल करके। थैंक यू सो मच। एंड इनफैक्ट ये इस तरह के जो फिस्कल स्टेप्स है ये भी जरूरी है अलॉन्ग विद मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेके सरकार में और सारी तरफ इतनी चर्चा है कि जो भी जहां भी ऐसा कोई कदम सोनू नजर आता है जो कि पहले से लिया जा सकता है कि ये और बढ़ ना जाए, अगर घटे ना तो कम से कम बढ़े, इसको रोका जाए। तो मुझे लग रहा है वीट हम सरप्लस है हमारे, देखिए वीट के भंडार कितने हैं, पर फिर भी बैन किया है तो साफ पता लग रहा है कि प्रिकॉशनरी है और हम नहीं चाहते कि कहीं जरा सी भी शॉर्टेज खड़ी हो जाए। जी, अगले कॉलर है फरीदाबाद से हरीश। हरीश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछें। गुड इवनिंग टू एंटायर टीम। जी गुड इवनिंग। सर कॉली सर, मेरे को एक सवाल पूछना है कि सर ये एक्सचेंज जो होते हैं जी, BSE हुआ या CDSL हुआ या वो NSE हुआ, अगर इनका भविष्य क्या होगा सर? मतलब अगर मान लो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, क्या लगता है सर इनमें सही अच्छा है? अच्छा, आप एक्सचेंज के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है हरीश जी, बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं IPOs आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज लिस्टिंग कर रही हैं। और आपको शायद जानकारी है या नहीं है, मैं बता देता हूं कि जब भी कोई कंपनी लिस्टिंग करती है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज को एक फी देनी पड़ती है, उससे उनकी आमदनी बढ़ती है, प्लस उसके अलावा बाकी भी चार्जेस ट्रेडिंग के दौरान हर कंपनी को देने पड़ते हैं। तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज का भविष्य बहुत अच्छा नजर आता है। जिस रफ्तार से नए नए निवेशक जुड़ रहे हैं शेयर मार्केट में, मुझे शेयर मार्केट का भविष्य कुल मिलाकर ही बहुत उज्जवल नजर आता है। पिछले अभी आपने वित्त मंत्री महोदया की अगर वक्तव्य सुना हो कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने कहा कि कितने करोड़ लोग इस समय नए, कोविड के दौरान तो 3 से 4 करोड़ लोग जुड़े और उसके बाद भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और लोगों ने तो इसको अपना कामकाज ही बना लिया। जब मुझे याद है लोग कोविड में घर बैठे थे और अब आदत सी डाल ली है तो नए लोग, तो मुझे ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज का भविष्य तो हरीश जी बढ़िया नजर आता है। And the next caller is Lakshmi Sharma from Delhi. But before we take that call, let's move on to the next story, which is about the US markets. The US markets rose yesterday, ending the week of wild market gyrations as relief at signs of peaking inflation vied with fears that policy tightening by the Federal Reserve could tilt the economy into recession. The Dow Jones Industrial Average rose 466 points or 1.5% to end at 32,197. The S&P 500 gained 94 points or 2.4% to 4,024, and the Nasdaq Composite added 434 points or 3.8% to end at 11,805. Gains were led by a rebound in mega cap tech and tech adjacent stocks, which sold off in recent sessions as benchmark treasury yields climbed and investors worried the Fed might hike interest rates more aggressively than expected. However, despite the day's gains, the S&P 500 and the Nasdaq posted their 6th consecutive weekly loss, the longest losing streak since fall 2012 for the S&P 500 and since 2011 for the Nasdaq. The Dow notched its 7th consecutive weekly dip. The blue chips average longest losing streak since late winter of 1980. And now let us take the call from Lakshmi Sharma. Welcome to the program. Please ask your question. नमस्कार शरद जी, मेरा सवाल है कि मैंने जो है UTI और फ्रैंकलिन के अंदर 23 साल पहले रिटायरमेंट बेनिफिट में पैसा इन्वेस्ट किया था। अब मैं 70 इयर्स हो गया हूँ, मैं रिफंड मतलब वापस लेना चाहता हूँ, तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा? जी देखिए शर्मा साहब, इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में ये कवर्ड होता है और आप उसको जो आपने सेल प्राइस, जो आपका रिडेम्पशन प्राइस होगा, उसमें से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो घटाई जाती है, उस पर इंडेक्सेशन लगाया जाता है और उसके हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगली बार करिएगा, थोड़ा और समय लगा के मैं इसको बता दूंगा। जी एक कॉलर है आरती शाह दिल्ली से, जल्दी से अपना सवाल पूछिए, हमारे पास 30 सेकंड है बस। हेलो जी, वी हैव गॉट 30 सेकंड्स, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। Yes, I just wanted to know which are the best sectors to invest in today because I'm a new investor. I just started investing. Aarti, I wish we had more time, but I can tell you very, very quickly. I think go for defense, go for pharma, go for IT. But I'll request you to call again next week to allow me to give you a more detailed answer. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें कॉल्स का सिलसिला भी बंद करना होगा। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आप आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. Startups in India are turning out to be a powerful vehicle to fulfill the dreams of common Indian youth, says Prime Minister Narendra Modi. Union government prohibits wheat exports and US markets end the volatile week higher. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.